Hello student. Today we will study about the advantages of accounting. The first advantages of accounting is replacement of memory. Human memory is limited and no businessman can remember all his transactions. In accounting, business transactions are recorded properly. Accounting provides a complete record of financial transactions. It helps to overcome the handicap caused by limitation of human memory. It means that businessman can remember very limited transaction. He cannot remember all his transaction. The transaction is how much amount received, how much goods are paid, how much goods are received, and how much amount in due and how much due amount are received. So all his transactions are recorded in a proper book. These books are helpful to provide the information about the financial transaction of the organization. So these financial transactions help to businessman. A businessman can overcome overcome all his overcome businessman can easily overcome all his business transaction. The second point is the settlement of tax liability. When proper accounts are maintained according to the principle of accounting, it becomes easy to ascertain the amount of income tax and other taxes payable by the firm. बिजनेस जो अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है, जब हम लोग पूरा अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, किसके बेसिस पर करते हैं? जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग होता है उसके बेस पर पूरा अकाउंटिंग प्रिपेयर होता है। तो उससे ही हमको पता चलता है कि कितना हमारे इनकम हुई और उस इनकम पर हमको कितना टैक्सेस पे करना है। तो बिजनेसमैन आसानी से अपने इनकम टैक्स को पे कर लेते हैं। किसके हेल्प से? अकाउंटिंग के हेल्प से। द थर्ड पॉइंट इज अ लीगल एविडेंस. Systematic record and accounting are accepted as a documentary evidence in the court of law. For example, if a businessman wants himself to be declared insolvent, he must present his account in the court. ये अकाउंटिंग जो है वो जब अकाउंटिंग में प्रिपेयर करते हैं तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं और वही रिकॉर्ड एक तरह से डॉक्यूमेंट्री है, एक एविडेंस बन जाता है किसके उसमें? इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जो लीगल और सही है। अब ये जब बिजनेसमैन किसी अपने आप को एक इंसॉल्वेंट है और अपने आप को डिक्लेयर करना है कि आई एम इंसॉल्वेंट, तो उस सिचुएशन में यही जो अकाउंटिंग है, जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया गया है, जो रिकॉर्ड्स है, जो डॉक्यूमेंट्री है, वो हेल्प करता है कोर्ट में एज अ एविडेंस. द another point is rising loan. In order to borrow funds from bank and financial institution, a business firm has to submit its final account. These lender carefully seen the financial statement of the firm before granting loan. जब भी कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी पर्सन या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कोई भी जब उसको पैसा बोरो करना पड़ता, कहाँ से? बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। बैंक से पैसा लेना हुआ, जैसे एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को पैसा लेना है तो वो बैंक के पास जाएगा या कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो पैसा एज अ लोन देते हैं बिजनेसमैन को। तो उस टाइम पर जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो बिजनेसमैन का क्या देखता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म। ये देखकर ही उसको देखता है लेंडर्स जो होता है, और फिर उसको आफ्टर सीइंग दिस तो इसमें जो है इसको चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद लोन प्रोवाइड किया जाता है बिजनेसमैन को. अनदर पॉइंट इज अ कंपैरेटिव स्टडी. A systematic record of transaction enable a businessman to compare the current year's result with those of the previous year and identify the key factor causing of change.
The result of one firm can also be compared with those of the other firm or industries to judge comparative position of the company. इट मीन्स दैट कि जब हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेसमैन कंपेयर करता है कि इस साल उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और अपने पिछले साल के अकाउंटिंग ईयर्स को इस साल का देखता है, जैसे 2020 का वो चेक करेगा और 2019 का, वो दोनों में से वो कंपेयर करेगा और उससे उसको पता चलेगा कि नहीं इसमें कुछ फ़र्क है या हम लॉस में जा रहे हैं, पहले की कंपैरिजन हमारा लॉस हुआ है या पहले की कंपैरिजन में हमारा इस साल जो है हमारा हाई है। ये कब पॉसिबल होगा कंपेयर करना, जब हमारा अकाउंटिंग जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो प्रॉपर मेंटेन होगा। और दूसरी सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई द की फैक्टर द कॉजिंग ऑफ चेंज, और इसी के थ्रू ये लोग एक आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या मेन रीज़न है जो ये चेंजिंग आया। सेकेंड इज द रिजल्ट ऑफ वन फर्म कैन बी कंपेयर विद दोस ऑफ द अदर फर्म। एक रीज़न तो ये है कि कंपेयर करना 2 ईयर्स में, और दूसरा ये है कि अपने फर्म की कंपेयर करना दूसरे फर्म में। इसीलिए कंपैरेटिव क्या होता है, इंटर एंड इंट्रा, 2 चीज़ में कंपेयर होता है, फिर उसी के बेसिस पर डिसीजन लिया। द लास्ट पॉइंट इज असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अकाउंटिंग प्रोवाइड वैल्यूबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। Such information help the management in planning the business activities, in taking correct decision, and in controlling the business operation to ensure the attainment of goal. अकाउंटिंग एक प्रोवाइड क्या करता है, वैल्यूबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसको, मैनेजमेंट को। जब अकाउंटिंग पूरा प्रिपेयर हो जाता है, अकाउंटिंग ईयर्स में जब लास्ट 31 मार्च को ये चीज़ देखा जाता है कि फाइनल स्टेटमेंट जो होता है हमारा लास्ट में, उसको चेक किया जाता है, और उसी को देखकर ही फिर हम मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि हाँ हमें आगे के लिए क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या हम अपने गोल की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या हमारा जो गोल है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट तो वो सारी चीज़ हो रही है कि नहीं। अगर उसमें कुछ भी कमी होती है तो वो अपने प्लानिंग में चेंज करता है, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड प्लानिंग है उसको चेंज करेगा, कंट्रोलिंग में चेंज करना ताकि वो अपने गोल को अटेन कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग कैश सारी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। वो हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर रिसिप्ट एंड पेमेंट सो एज टू मेक द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फंड। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हेल्पफुल किस लिए करता है कि फ्यूचर में हमें कितना रिसिप्ट मिलेगा, कितना हमारा पेमेंट होगा, और उससे वो अपना ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फंड कि हमें अपना उस फंड को कहाँ यूज़ करना है जिससे कि हमारा फ्यूचर में हम ये चीज़ मिल जाए। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन द मैनेजमेंट कैन मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस। इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मैनेजमेंट अपने मेंटेन कर सकता है कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस, कि हमारा जो एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल कर सकता है, एंड इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट, जो उसकी एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, उसको बेटर यूटिलाइज कर सके। आई थिंक all the point will be clear. If you have any doubt in any point, you can ask me question. Thank you class.